Good afternoon, everyone. I am Sakshi Rana, Department of Electrical Engineering, IMD College of Polytechnic, Greater Noida. Today, my topic is miscellaneous measuring instrument. In this, we read about the instruments. First one is the Megger. Megger. A Megger is a what is Megger? Megger is a type of an electrical test equipment. With the help of we can measure insulation resistance. Insulation resistance is that resistance which is the coating on the wire or PVC coating, you can say that, and it applies a high voltage to the circuit and measure the amount of current that flows through the insulation. With the help of Megger, we can also measure the current which is flow on that particular wire or the instrument, and this helps to identify potential problems with the insulation such as damage or degradation. If there any type of damage or any type of break in anywhere, then with the help of Megger we can find out that. Okay, next move on. Next is the working principle of Megger. How Megger works. मेगर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन. मेगर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन पे काम करता है. And the centrifugal clutch on the generator is the mechanism that provides the constants for the insulation test. इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी यूज होता है जो कि इंसुलेशन टेस्ट के लिए ही हम यूज करते हैं. एंड द इंसुलेशन विद लो रेजिस्टेंस इज टेस्टेड यूजिंग अ स्टडी वोल्टेज. And the below figure shows the Megger meter circuit diagram. This figure is shows the Megger. Basically, in this figure, there are used a clutch, scale. There are two coils, coil A and coil B, two magnets, N and S, resistance and testing terminal. In the between of these testing terminal, we have attached that particular instrument or wire or anything which we have to measure the insulation resistance, right? And the armature of the generator is rotated by the hand-driven crank lever. In this is the crank handle. With the help of this crank handle, we can rotate this, right? And the clutch mechanism is designed to slip at a predetermined speed, which facilitates the generator to maintain a constant speed. There is a clutch attached in it. With the help of the clutch, we can manage the uh, constant speed. Okay, or you can say we can set a fixed speed of that with the help of clutch, and the hands the constant voltage while testing. Because of that, the constant voltage is flowing. Or when we have to measure the insulation resistance, and the clutch will help to provide the constant voltage. Next is the two coils A and B. As we have seen, there are two coils, coil A and coil B, constitute a moving coil voltmeter and an ammeter. Both are combined to form one instrument. In this, voltmeter and ammeter are connected along with connected, and these form one instrument, and the whole terminal of the equipment whose insulation resistance had to be measured is connected to the testing terminal X and Y to the body of the equipment which is generally grounded. एज हमने अभी देखा था कि यहाँ पे एक्स और वाई ये दो टर्मिनल हैं. इन टर्मिनल के बीच में हम वो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट या जिसको भी हमें मेजर करना है, जिसका भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, वो हम कहाँ लगाएंगे? एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में लगाएंगे, राइट? And when the crank handle is rotated, the voltage is generated in the generator, and the generated voltage is applied across the voltage coil A through resistance R1. In this, जैसे ये हमारा क्रैंक हैंडल है, जैसे जैसे हम इसे रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, क्रैंक रोटेटेड, देन क्रैंक क्या करता है? क्रैंक की हेल्प से आपका जनरेटर जो है वो आपका वोल्टेज जनरेट करता है. When terminal X and Y are free initially, no current flows through the coil B, and the torque produced by coil A rotate the moving element to show infinity. जब X और Y इन टर्मिनल के बीच में कुछ नहीं लगा होता इन द सेंस कि आपको किस रेजिस्टेंस का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है और क्या करना है, तो वो इसमें कनेक्टेड नहीं होता. तो आप क्या करते हैं? इसमें आपका जो भी करंट होता है वो फ्लो नहीं करता थ्रू द कॉइल ऑफ बी. इसमें जो आपकी कॉइल बी रहती है, सॉरी, जो आपकी कॉइल बी होती है, ये वाली आपकी क्या होती है? करंट कॉइल होती है या अमेटर कॉइल हम कह सकते हैं. तो इसमें आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है.
ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे क्या होते हैं, इन्हीं कॉइल की हेल्प से हमारा क्या होता है, जो कॉइल ए है वो आपका टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बेसिकली टॉर्क क्या होते हैं, टॉर्क आपके तीन टाइप के होते हैं। वो नंबर वन इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, second one is the controlling torque, and third one is the damping torque. Basically deflecting torque is the torque with the help of that we can start the initial position, and if the pointer is on the zero condition it start to deflect. And the controlling torque, what is the controlling torque? Next is controlling torque is basically which can control the pointer, right? And the damping torque is that type of torque which can control the damping, or you can say the oscillation of the pointer, right? Oscillation means when it reflects or moving back and back, right? Next is the deflecting torque produced by coil B interacts with the torque of coil A and rotates the moving element to indicate the resistance value. With the help of this, we can measure the resistance and resistance value, and the voltage generated by this instrument is around 5. And with the help of measure, the voltage is generated. How much voltage is generated? It is generated near about 500 volt, right? Megger meters are available to generate basically not only 500 volt. With the help of Megger, we can generate 1000 volt, 2500 volt, and 5000 volt also, right? High voltage Megger are either motor operated or power operated. Basically, we have seen here it is a hand operated Megger because it is a low voltage generated measure. But if we need and if we use high voltage generated measure, that are the 1000, 2500 and 5000 volt, with the help for that we have to use motor operated, or we can say power operated. That much voltage we cannot generate with the help of hand operated measure. For that we have to use uh, motor operated or power operated measure. Okay. And the next one is the construction of Megger. Construction of Megger, how is Megger constructed, and which parts of Megger are connected? क्या क्या इसमें हम use करते हैं? Like, right, in this we have seen there are the unknown resistance, Rx, pole piece, current coil, angular iron ring, magnets, two magnets, and the hand driven generator, that is the generator. With the help of hand operated generator, we can generate only low voltage, not high voltage, right? Basically now we move on the construction में हम क्या करते हैं, a Megger meter is made up of combining a series type ohm meter and DC generator. मेगर में कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपका क्या होता है, एक सी ओम मीटर यूज होता है और एक डीसी जनरेटर यूज करते हैं. टू वोल्टेज कॉइल्स V1 एंड V2, दो वोल्टेज कॉइल होती हैं V1 एंड V2, एंड वन करंट कॉइल कंस्टिट्यूट द मैगर एंड वन करंट कॉइल इज यूज्ड हियर, right? And the electric current drawn by the circuit under test would pass through a deflecting coil. जो आपकी ये coil करंट सर्किट होता है, करंट इसमें जो जनरेट होती है वो आपकी क्या होती है, डिफ्लेक्टिंग कॉइल से पास होती है. यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग कॉइल आपकी क्या है, दैट इज द करंट कॉइल, जो कि आपकी सीरीज में कनेक्टेड होती है, राइट? एंड द प्रेशर कॉइल समटाइम रेफर टू एज द कंट्रोल कॉइल. कई बार जो आपकी प्रेशर कॉइल होती है, प्रेशर कॉइल को हम एज अ कंट्रोल कॉइल भी यूज करते हैं, जो कि आपकी सर्किट में अटैच होती है, दैट इज अटैच्ड इन द across the circuit, right? Next, these are the parts which we have used in the construction or in the Megger. First one is the battery or DC generator connection. Battery or DC generator connection, what is that? They are shown in the figure. Manual hand driven Megger. This is the hand driven mechanism. With the help of that we can rotate the Megger, right? टेस्ट लीड कनेक्शन पॉइंट, यहाँ पे दो कनेक्शन पॉइंट होते हैं जिसके हेल्प से हम उसमें कनेक्ट करके हम उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट का आपको निकालना होता है, राइट? तो ये यहाँ पे दैट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक मेजर. इलेक्ट्रॉनिक मेजर जो भी आपकी पावर की हेल्प से या आपकी मोटर की हेल्प से चलते हैं. मैनुअल हैंड ड्राइवन मेजर इलेक्ट्रॉनिक मीटर विद टेस्ट पुश बटन. इसमें आपका टेस्ट लीड कनेक्शन होते हैं, यहाँ पे यही दो सेम इसमें जो होते हैं, टेस्ट पुश बटन. इसमें आपका क्या होता है, दोनों में आपका क्या गिवन है, एक मेजरमेंट स्केल गिवन है. मेजरमेंट स्केल में आपका क्या है, एनालॉग मेजरमेंट स्केल गिवन है. एनालॉग मेजरमेंट स्केल क्या होता है, जिसमें आपके नंबर्स या पॉइंटर की हेल्प से हम वैल्यू को मेजर करते हैं, राइट? एंड बैटरी और डीसी जनरेटर कनेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे. व्हाट इज दैट? The hand driven generator is connected to produce the voltage. जो hand driven generator होता है वो किस लिए यूज करते हैं, जिससे कि हमने अभी पढ़ा था लास्टली कि किस लिए यूज होता है, टू प्रोड्यूस द
वोल्टेज, वोल्टेज को जनरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। In order to produce torque in the opposite direction, the deflecting and controlling coil must position at a right angle. हमें क्या करना है कि अगर जो आपका टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो आपका जो डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क है वो दोनों आपके क्या होते हैं, राइट एंगल पे। इट मींस दैट बोथ आर सिचुएटेड इन द 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर एंड कनेक्टेड पैरेलल टू द जनरेटर, और जनरेटर के पैरेलल में वो कनेक्ट होते हैं, राइट। एंड द परमानेंट मैग्नेट दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। परमानेंट मैग्नेट हम क्यों यूज करते हैं, जिससे कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का पर्पस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का पर्पस हमारा ये होता है, या जो भी आपका मेगर में यूज होता है, जिससे कि आपका जो भी पॉइंटर है, पॉइंटर आपका क्या हो सके, डाइवर्ट हो सके, राइट। पॉइंटर डाइवर्ट मीन्स अपनी पोजीशन से वो रिफ्लेक्ट हो सके, एक रोटेट हो सके। अगर पॉइंटर ही आपका रोटेट नहीं होगा तो हम वैल्यू कैसे मेजर कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं, राइट। पॉइंटर एज अभी हमने देखा था, बताया था कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर की हेल्प से हम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, या जहां पे भी आपका पॉइंटर जो भी वैल्यू इंडिकेट करेगा उस वैल्यू को, वो वैल्यू हमारी क्या होगी कि वो आपकी पॉइंटर की वैल्यू है, या आपका जो भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इतनी आई है, राइट। पॉइंटर क्या होता है, द पॉइंटर हैज टू एंड। पॉइंटर में दो एंड होते हैं, सबको पता है ये, जैसे इसमें यहाँ पे पॉइंटर है, इसमें टू एंड्स होते हैं। पॉइंटर में टू एंड्स होते हैं। एक क्या होता है, एक एंड आपका फिक्स्ड होता है जो कि, और एक एंड आपका फ्री होता है, ठीक है। Pointer has two ends, one of which is attached to the coil and the other end deflects on a scale from infinity to zero. Means एक पॉइंटर जो होता है आपका, ये आपका फ्री रहता है, एक एंड आपका कॉइल से कनेक्ट रहता है। कॉइल से कनेक्ट क्या होगा, जब भी आपका परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से आपका जो कॉइल है उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा। मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से आपका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा तो जो पार्ट पॉइंटर का क्या है, कॉइल से कनेक्टेड है, तो वहां से वो रोटेट होना स्टार्ट होगा। और एक एंड जो पॉइंटर का क्या होता है, दैट इज फ्री, तो वो आपकी स्केल पे रोटेट करेगा या मूव करेगा। और जितना भी जो भी आपके साथ उसमें लगाया हुआ है, जिसका भी हमें पीवीसी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो उसका क्या करेंगे, वो उतनी वैल्यूज में शो करेगा, ठीक है। ये होता है आपका पॉइंटर। एंड स्केल, स्केल क्या है, जिसपे वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको मेजर करनी है, यानी उस पे 1 2 3 4 XYZ जो भी वैल्यू मेजर है, आइडेंटिफाइड है, तो वो आपकी स्केल होती है। जैसे जनरली हम स्केल का यूज करते हैं, स्केल पे क्या होता है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर या सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन होती है, तो वो आपकी एक स्केल होती है। ऐसे ही स्केल हमारे मेगर में भी होती है, बट उसमें वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस होती है, नंबर सेम होते हैं, ठीक है। स्केल क्या होता है, द फ्रंट साइड ऑफ द मैगर हैज अ स्केल। मैगर के जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, जैसे ये है, इसमें ही आपकी एक स्केल होती है। एंड दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to इंफिनिटी, जिसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके इंफिनिटी तक वो वैल्यू आपकी मेजर कर सकता है। Allowing us to read the value, or with the help of the pointer we can read the value, we can measure the value, right. And so protect the instrument from any damage caused by the low external electrical resistance being tested by considering the pressure coil resistance and the current coil resistance. जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी डैमेज से, लाइक कोई इंटरनल डैमेज हो जाता है, या आपकी सप्लाई कुछ ज्यादा आ जाती है, या आपकी वोल्टेज ज्यादा जनरेट हो जाती है, उसे डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। और कंसिडरिंग द प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस एंड द करंट कॉइल रेजिस्टेंस, राइट। नाउ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हम मेगर यूज क्यों कर रहे हैं, मेगर का यूज क्या होता है। हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम बहुत सारे रेजिस्टेंस का यूज कर, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो हमने मेगर ही क्यों यूज किया, तो सभी चीज़ों के कुछ ना कुछ यूजेस होते हैं, कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि इसका हमारे पास एडवांटेज ही है, किसी ना किसी का हर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। और ऐसा नहीं होता जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं सबके डिसएडवांटेजेस हैं, सबका एडवांटेजेस भी होते हैं, राइट।
तो हमारा है यूजेस ऑफ मेगर। मेगर के क्या यूज होते हैं? इट इज यूज टू मेजर एन इलेक्ट्रिकल फायर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। हमने अभी जैसे मेगर में पढ़ा, मेगर किस लिए यूज करते हैं? मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हम इलेक्ट्रिकल वायर मतलब कहीं पे क्या होती है, 3 फेज सप्लाई आ रही है, कहीं पे 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, कहीं पे ज्यादा सप्लाई आ रही है, तो हम वहाँ पे वायर्स यूज करते हैं। तो उनका जो इंसुलेटिंग है, मतलब जो उनके ऊपर कोटिंग रहती है, इंसुलेशन रहता है, तो वो मेल्ट ना हो। कई बार देखा होगा कि अगर हमारी इतनी हाई वोल्टेज आ रही है तब भी हमारा वायर मेल्ट नहीं होता, या कहीं पे हमने बारीक वायर यूज किया है तो वो मेल्ट हो जाता है। तो वो किसकी वजह से? क्योंकि हमारा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, हमने वो उसके अकॉर्डिंग हमने नहीं लगाया। जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसमें कितना सप्लाई है, वहाँ पे कितना कौन सा वायर हमारा अवेलेबल हो सकता है, तो वो हम यूज नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई वो कई बार हमारा मेल्ट करता है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड सिस्टम। ये हमारा क्या होता है, हम मेगर से क्या कर सकते हैं? मेगर इज यूज टू इवैल्यूएट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए, सिस्टम्स को इवैल्यूएट करने के लिए भी आपका मेगर यूज होता है। एंड मेगर इज ऑल्सो यूज फॉर इंस्टॉलिंग वाइंडिंग। वाइंडिंग को इंस्टॉल करने के लिए भी हम मेगर का यूज करते हैं। एंड basically मेगर इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ द बैटरी, रिले, ग्राउंड कनेक्शन एंड अदर टेस्ट। बहुत सारे ऐसे टेस्टेज हैं जो कि हम मेगर की हेल्प से कर सकते हैं। आपके ग्राउंड कनेक्शन प्रॉपर है नहीं है, वहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, कितनी वैल्यू आपको निकालनी है, कितना वैल्यू आपको यूज करना चाहिए था, वहाँ पे हम मेगर का यूज कर सकते हैं। एंड इट इज यूज एज अ मेगर अर्थ टेस्टर। मेगर अर्थ टेस्टर भी हम ऐसे यूज करते हैं, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा क्या है कि हम एक अर्थ टेस्टर भी होता है जो कि अर्थ के रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं जिसकी हेल्प से। बट हमारा जो मेगर होता है, मेगर इज ऑल्सो कैन यूज एज अ अर्थ टेस्टर, राइट। नाउ इज द एडवांटेजेस ऑफ मेगर। मेगर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? मेगर क्या है? इट्स ऑपरेशन इज सिंपल। मेगर को यूज करना बड़ा सिंपल है, लाइक इट इज हैंड ऑपरेटेड एंड यू कैन से द पावर और मोटर ऑपरेटेड। तो ये आपको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड इट इट यूजेस अ स्मॉल डीसी जनरेटर। इसमें एक स्मॉल डीसी जनरेटर यूज होता है, परमानेंट मैग्नेट टाइप यूज होता है। एंड इट डजंट रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स लाइक अ बैटरी और सम वायर टू प्लग इन। किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड द कॉस्ट ऑफ अ मैगर इज ऑल्सो लेस। एंड physical damages can be identified with the magger, which may prevent electrical shock due to the leakages. And disadvantages of the magger, if any instrument has the advantages, then that instrument is also have the disadvantages also. And the disadvantages of the magger is the time required for the measurement is more. If we talk any other instrument, there is a time for the measurement is very low compared to the magger, and magger take more time. Like राइट, द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट हाई। जो मेगर की एक्यूरेसी है वो हाई नहीं होती है। हाई नहीं है मतलब इट कैन नॉट मेजर मोर एक्यूरेट वैल्यू देन द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। इट it is the mega. It was the mega, the construction, working, uses, and which we used. Next topic is the earth tester. Earth tester क्या होता है? विद दी लाइक अभी हमने बात किया है कि मैगर जो होता है, मैगर को भी हम एज अ अर्थ टेस्टर यूज कर सकते हैं, जो कि अर्थ के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड दी इन अर्थ टेस्टर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ। जो कि जो भी इंस्ट्रूमेंट अर्थ के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ टेस्टर कहते हैं। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज वेरी लो। जो आपकी अर्थ होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा लो होता है। एंड द फॉल्ट करंट थ्रू द अर्थ इलेक्ट्रोड पासिस टू द अर्थ, दस प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम डैमेज। तो इस तरीके से आपका जो भी सिस्टम होता है उसे डैमेज होने से बचाया जा सकता है। And the earth electrodes control the high potential of the equipment, which is caused by the high lightning surges and the voltage spikes. The neutral of the three-phase circuit is also connected to the earth electrode for their protection. मतलब अर्थ रजिस्टर, अर्थ टेस्टर में क्या होता है, हम इन अर्थ का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। कई बार क्या होता है, वोल्टेज स्पाइक्स होती हैं या हाई लाइटिंग सर्जेस होती है, तो उससे आपके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डैमेज होने का खतरा कम रहता है। बिफोर प्रोवाइडिंग द अर्थिंग टू द इक्विपमेंट इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। जब भी हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग जनरली हमें करनी होती है, बट जब भी हम अर्थिंग करते हैं तो उससे पहले हमें क्या होना चाहिए? अर्थ का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। और अर्थ का रेजिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ
earth tester, right? It is essential to determine the resistance of that particular area from where the earthen pit can be dug, and the earth should have low resistance so that the fault current easily passes to the earth. जो भी fault current है वो easily earth में pass हो जाए, and the resistance of the earth is determined by the value of the earth tester. वो जो resistance होता है earth का वो हम earth tester instrument की help से measure कर सकते हैं. Basically earth tester क्या है? Earth tester is also an instrument. ठीक है? It is the construction of अर्थ टेस्टर की ये कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे कैसे बनता है. इसमें भी आपका क्या होता है, एक डीसी जनरेटर होता है, करंट रिवर्सर होता है, रेक्टिफायर, पोटेंशियल कॉइल होती है, नॉर्थ एंड साउथ 2 मैग्नेट्स होती हैं, एंड वन कॉइल इज कनेक्ट करंट कॉइल इज कनेक्टेड बिटवीन नॉर्थ एंड कॉइल P2, C2, C1, P1. ये सारे आपके क्या होते हैं, अर्थ टेस्टर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. मतलब अर्थ टेस्ट में जो भी आपके यूज होते हैं वो होते हैं. अर्थ टेस्टर यूजेस द हैंड ड्राइवन जनरेटर. ये हमारा क्या है, हैंड ड्राइवन जनरेटर है. एंड द रोटेशनल करंट रिवर्सर, यहाँ पे आपके रोटेशनल करंट रिवर्सर यूज होते हैं. एंड द रेक्टिफायर, जो दो रेक्टिफायर यूज होते हैं यहाँ पे. द करंट रिवर्सर एंड द रेक्टिफायर माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द डीसी. जो ये आपका जनरेटर है इसके साथ ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं. जो आपका अर्थ टेस्टर होता है वो आपका क्या सिर्फ डीसी पे काम करता है. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रेक्टिफायर, राइट. जो टेस्टर होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 कम्यूटेटर्स होते हैं. विद द करंट रिवर्सर और रेक्टिफायर के साथ 2 कम्यूटेटर यूज होते हैं जिसमें आपके 4 फिक्स ब्रश होते हैं. एंड द कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर एक डिवाइस है जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है. और ये इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर. जनरेटर के आर्मेचर जो सीरीज में कनेक्टेड होता है. And the brushes are used for transferring the power from the stationary parts of the moving part of the devices. And the arrangement of the brushes can be done in such a way. इस टाइप से हम उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जब भी रोटेशन ऑफ कम्यूटेटर हो वो आपका प्रॉपरली हो. जो अर्थ टेस्टर है, एंड द अर्थ टेस्टर कंसिस्ट 2 प्रेशर्स एंड द करंट कॉइल. 2 प्रेशर कॉइल होते हैं, करंट कॉइल होते हैं. जिसमें आपका जो कॉइल होता है वो परमानेंट मैग्नेट के साथ करंट कॉइल कनेक्टेड रहता है. और एक पेयर जो करंट और प्रेशर कॉइल का है वो आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है. ठीक है. The one end terminal of the pressure coil is connected to the एक एंड जो होता है टर्मिनल का प्रेशर कॉइल का वो आपका क्या होता है, रेक्टिफायर से कनेक्ट होता है. एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द अर्थ इलेक्ट्रोड, और दूसरा जो होता है वो अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है यहाँ. ठीक है. द करंट कोयल इज कनेक्टेड टू द रेक्टिफायर. इसी तरीके से जो आपका करंट कोयल होता है, जैसे आपका प्रेशर कोयल आपका रेक्टिफायर और अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है, इसी तरीके से आपका जो करंट कोयल है वो भी कनेक्टेड होता है. एंड द अर्थ टेस्टर कंसिस्ट द पोटेंशियल कोयल. अर्थ टेस्टर में आपका क्या होता है, पोटेंशियल कोयल होता है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डीसी जनरेटर, जो कि डीसी जनरेटर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है. एंड द पोटेंशियल कोयल इज प्लेस्ड बिटवीन द, जो पोटेंशियल कोयल होता है वो परमानेंट मैग्नेट के बीच में कनेक्टेड होता है. एंड जो आपकी कॉइल कनेक्टेड रहती है पॉइंटर से, पॉइंटर इज फिक्स्ड ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल, राइट. कैलिब्रेटेड स्केल where the pointer moves, or from where we can measure the value of the resistance, right. And the pointer indicate the magnitude of the resistance, and the deflection of the pointer depend on the ratio of the voltage of pressure coil to the current coil of the करंट coil. जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर का वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वोल्टेज और करंट. ठीक है. वोल्टेज ऑफ अ प्रेशर कोयल, प्रेशर कोयल में कितनी वोल्टेज फ्लो कर रही है, कितनी वोल्टेज आ रही है, करंट कोयल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका पॉइंटर है वो कितना डिफ्लेक्ट होगा. ठीक है. And the short circuit current passes through the equipment to the earth is alternating in nature. We can say the alternating flows in the soil. जो भी आपका alternating current है, AC current है, वो आपका soil में flow होता है. And this alternating current reduces the unwanted effect of the soil, which occurs because of the chemical action. जो कि chemical action की वजह से जो भी unwanted effects होते हैं soil के वो reduce करते हैं because of the production of the back EMF, क्योंकि इसमें आपका EMF produce होता है. It was the construction of the earth tester, and it was also the working of the same. Here we have covered only construction and working both, and the uses. Its uses is that we can use the earth tester with the by measuring the resistance of the earth, and advantage is it is very easy to operate. With the this
Thank you. And these were the instruments, basically measuring instrument. We can say that these are the Megger and Earth tester. Thank you.